Hi, good evening, everyone. Are you able to hear my voice? सबको सुनाई दे रहा है बराबर से? Okay, so let us start with today's class. Let me give you a recap of whatever we had done earlier in this chapter of differential equation. सबसे पहला तो मैंने ऑर्डर एंड डिग्री कवर अप किया था, ऑर्डर एंड डिग्री। फिर सेकंड एक्सरसाइज में क्या था कि सोल्यूशन दिया रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सोल्यूशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है कि नहीं वो अपने को प्रूफ करने के। Now, the next part of the chapter is solving differential equations. Now, once we solve the differential equations, जब भी हम लोग solve करते हैं, okay, there are four category problems. The first category is variable separable, and that entire category I have covered up. If I'm not wrong, that entire category I have covered up. Okay, so आफ्टर दैट अगर एक प्रॉब्लम वेरिएबल सेपरेबल का नहीं रहेगा, if any problem is not of variable separable method, then we always think about first कि can we apply method of substitution over here, can we apply method of substitution. Okay, so let us check out on such kind of problems कि ये method of substitution के problems होते कैसे हैं, right? Yeah, so let us go to exercise 8 point कौन सा ये 8.3. Let us go to exercise 8.3. Fine. Okay. So now in 8.3, question number 2, exercise, give the topic name as method of substitution. Method of substitution. Okay. Exercise 8.3, question number 2, sub question 4. Question number 2, sub question 4. Okay. So dy by dx is equal to 4x plus y plus 1. Okay. ये दिया है अपने को, and we are supposed to find out the particular solution. We are supposed to find out the particular solution. Now, when we look at this problem, can we separate the x and y terms? X and y terms का separation होगा क्या? So let me just give you some examples. Don't copy this red color part. Okay, ये हो गया dx. एक साइड पे dy, दूसरी साइड पे dx. Okay, so can I move x on one side and y on one side? X on one side and y on one side. Yes. So now see, if I separate the y terms and x terms on dy and dx, एक दूसरे साइड पे हम लोग ने रख दिया, so can we separate x terms and y terms? अगर कुछ है आपके पास method, then you let me know. Otherwise, we have something else to do over here. We have something else to do over here. I don't think so. So I think most of you might be trying, but then it's okay. नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है. Then my next option would be method of substitution. I will think about method of substitution. अगर variable separable होता नहीं है, then we can certainly think about method of substitution. Okay, 4x plus y plus 1. Now this is equation number 1. I'll put the entire right hand side. I'll put the entire right hand side as t. पूरा right hand side को मैं t लिखता हूँ. Okay, अभी देखो, डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रॉब्लम बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा. बीच में इफ यू कीप ऑन आस्किंग तो आपका भी कंफ्यूजन बढ़ेगा. ओके, और बाकी का लोग का भी कंफ्यूजन बढ़ सकता है. सो जस्ट वेट फॉर दिस प्रोसीजर टू हैपन. फाइन. देन डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 1, तुम लोग को इंटीग्रेशन में डी बाई डी एक्स दोनों साइड पे लेने का था.
when we substitute something as t. I hope you people remember this. ऑफलाइन लेक्चर्स में ये वीक से मैं इंटीग्रेशन चालू करने वाला हूँ. ओके, कम ऑन नाउ. डेरिवेटिव्स, इतना अभी रिवीजन अपना हो रहा है डेरिवेटिव्स का. 4x का डेरिवेटिव क्या है, कोई बताएगा मुझे? 4x का डेरिवेटिव 4. 4x का डेरिवेटिव इज 4. ओके, y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy by dx. परफेक्ट. y का डेरिवेटिव इज dy by dx. ओके, एंड 1 का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0. राइट. So if you have copied this, let us go to the next slide. I'll wait for you. Please copy this. Okay. So is it over? ठीक है. So 4x का डेरिवेटिव है 4. Then y का डेरिवेटिव dy by dx plus 0 is equal to dt by dx. Okay. Fine. Therefore, what is dy by dx? dy by dx क्या है? Is it dt by dx minus 4? ठीक है. चलो इसको बॉक्स कर देता हूँ मैं. फाइन. अभी from 1. Let us proceed with from 1. Let us proceed with from 1. ठीक है. इंटीग्रेशन I is equal to, अरे सॉरी, इंटीग्रेशन का आदत हो गई. गो टू इक्वेशन नंबर 1. देखो इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1. नाउ यू टेल मी dy by dx के जगह पे क्या आएगा? आप लोग ने इतना कॉपी किया है तो बोलो dy by dx के जगह पे क्या आएगा? dt by dx minus 4. Yes, very good. dt by dx minus 4. dt by dx minus 4. Okay. And at the same time, instead of 4x plus y plus 1, what will be there? Which term are we supposed to substitute? T. Is this very difficult? Okay. So dt by dx minus 4 is equal to t. अभी प्रॉब्लम एकदम सिंपल होने वाला है. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. प्रॉब्लम इज गोइंग टू बिकम वेरी सिंपल. चलो इतना कॉपी करके हो गया तुम लोग का? इतना कॉपी करके हो गया? ठीक है. अभी मैं -4 को राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ. -4 को राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ. विल इट बिकम t+4? विल इट बिकम t+4? ओके. So dt by dx is equal to t+4, right? क्रॉस मल्टीप्लाई करो t+4 into dx. Now you tell me, can we separate the t terms and x terms? t और x terms का separation हो सकता है क्या? You people tell me. तो स्टार्टिंग में तो डिफिकल्ट था वेरिएबल सेपरेट करने के लिए, लेकिन डोंट यू फील
मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ने अपना काम थोड़ा सा आसान कर दिया है. Yes. Okay. Then see now, dt upon t plus 4 is equal to dx. dt upon t plus 4 is equal to tx. Guys, tell me, is t a constant? ये t constant है क्या? Obviously not. Yeah. अभी क्या करूं? अभी तो सेपरेशन हो गया है. t टर्म्स ऑन वन साइड, x टर्म्स ऑन वन साइड. अभी तो कितना आसान हो गया है. अगर आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज थोड़ा भी अच्छा रहेगा उसमें, then this problem will be a bit easy for you. Yeah. So integration on both the sides. Integration of 1 upon t plus 4 dt. Integration of 1 dx. Can I write 1 dx? चलेगा? ओके. राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या रहेगा? नॉट डेरिवेटिव, सॉरी. राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? x. वेरी गुड. x प्लस सी. और प्लस सी हमेशा राइट हैंड साइड में डालो डिफरेंशियल इक्वेशंस में. डोंट आस्क व्हाई. उसके पीछे रीजंस रहता है. ओके. हर एक रीजन जानना जरूरी नहीं है. ओके. लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड, एनीवन. लेफ्ट हैंड साइड का कंपैरिजन कौन सा फॉर्मूला के साथ होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी, राइट? इज इट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी? log modulus t. Then what is integration of 1 upon t plus 4? What is integration of 1 upon t plus 4? Log modulus t plus 4. Okay. Log modulus t plus 4. Is t plus 4 linear algebraic? Is t plus 4 linear algebraic? So integration में don't just proceed blindly. Check कि t का replacement कौन है? t plus 4. So is t plus 4 linear algebraic? Yes, absolutely yes. So log modulus t plus 4 upon dy dt of t plus 4. Okay. I hope you know this is the chain rule. Chain rule में dy dt पार्ट नीचे आ जाएगा. ठीक है. ओके. इसका आंसर क्या है? 1. Denominator is 1. Okay. So eventually I will write this as, therefore log modulus t plus 4 is equal to x plus c is equal to x plus c. Fine. Yes, Gauri. Okay. संस्कार देखो स्टार्टिंग में, I'll come back to that. I'll answer your doubt. Don't worry. Yeah. अभी देखो लास्ट में क्या करूँ बोलो. ये t को रिप्लेस करना है. ये t को रिप्लेस करना है. What is t? चलो लिख देते हैं. t का वैल्यू लिख देते हैं. log modulus 4x plus y plus 1. ओके. प्लस 4, राइट? t का वैल्यू डाल दिया मैंने, x प्लस c. तो log मॉड्यूलस 4x प्लस y प्लस
5 इज इक्वल टू x प्लस c। ठीक है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। यहाँ पे कोई लॉग का टर्म्स नहीं है दोनों। there are no two log terms where we can just combine those log terms. So this is the general solution. ठीक है, ओके। अभी पुट एनीवन, पुट x equal to 0, y equal to 1, put x equal to 0, y equal to 1 in general solution. Put x equal to 0, y equal to 1 in general solution. Okay, so log 4 into 0, x क्या है, 0 है, 0 plus c. So can someone tell me what is the value of c? Is it log 5? Is it log 5? 1 plus 4 था ना ये, कि 1 plus 5 था? अच्छा 4 था, so this is log 6. I'm sorry, 1 plus 5 मैंने बराबर से लिखा नहीं है. Okay, put c is equal to log 6 once again in general solution. So log 4x plus 1, 4x plus 5, 4x plus y plus 5 is equal to x plus log 6, x plus log 6. Okay, कॉपी करो अच्छे से. Now my point which I have communicated in the previous lectures as well. यहाँ पे दो log term साथ में है क्या? यहाँ पे दो log term साथ में है? Yes. तो दोनों log term को combine करो. तानिया प्लीज कुछ भी मत पूछो प्लीज. My request. Okay. So log 4x plus y plus 5 minus log 6 is equal to x. मैंने क्या बोला था, अगर लॉग टर्म साथ में रहेंगे, अगर लॉग टर्म साथ में रहेंगे तो उसको कंबाइन कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो माय एफर्ट इज मूविंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. मैंने दो लॉग टर्म्स को साथ में ले लिया. अभी क्या ये दोनों लॉग टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं? क्या ये दोनों लॉग टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं? यस, ये दोनों लॉग टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं. लॉग ए अपॉन बी, यस वेरी गुड. लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी. log a minus log b is log a upon b. So log 4x plus y plus 5 upon 6 is equal to x. Okay. अभी यहाँ पे your moderator might expect one thing, one last thing he can expect. What is that thing? Can someone tell me? Yes, Nikhil, very good. I'm reading your comments. सिक्स दूसरा साइड पे कैसा जाएगा संस्कार? लॉग है ना. ओके, चलो लिख देता हूं मैं. log a equal to b, therefore a is equal to p raised to b. ये भी मैंने बताया था लास्ट टाइम. ओके, तो ये a है, ये b है. ओके, सो 4x प्लस y प्लस 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू e रेज टू x. ओके, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा.
ये 6 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा. Will it make any difference? Even if we even if we put that 6 on the right hand side, it is not going to make any difference. कुछ cancellation वैंसलेशन होने वाला नहीं है, कोई property use होने वाला नहीं है. So this is your particular solution. Okay, ठीक है. Yes, हेत लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने log a minus log b किया, which is log a upon b. Correct. किसी को तो अभी मैं मीटिंग के बाहर ही निकलने वाला है. Yes, have you understood this problem? हाँ हेत पूछो हेत, प्लीज आस्क. स्टार्ट में y को LHS में लेके कर सकते थे. ओके, लेट्स डिस्कस दैट, क्योंकि वो डाउट संस्कार को भी है. देखो स्टार्टिंग में ऐसा था, dy by dx is equal to 4x plus y plus 1. ये y को तू LHS में कैसे लेके जा सकता है? ये देखो, ये एक मेथड है. दिस इज वन ऑफ द मेथड. ओके, लेकिन इसके आगे क्या? व्हाट आफ्टर दिस? हाउ कैन वी सेपरेट dx and y terms and x terms? Can I send this dx term over here directly? No. बीच में माइनस y है ना, ऐसे कैसे डायरेक्टली जाएगा उधर? चलो, अगर आपने एलसीएम भी किया इसके बाद में, dy माइनस वाई डी, ऐसा भी अगर आपने किया अपॉन dx इज इक्वल टू 4x प्लस 1, अभी लेके जाओ यहाँ पे, तो ये पूरा x का टर्म्स रहेगा. लेकिन यहाँ पे सब x का टर्म्स है क्या? यहाँ पे पूरा y का टर्म्स है क्या? क्यों? फिर भी अभी एक x बचा है वहां पे. I'll write this more neatly so that you know there is no confusion. चलो, आपने मुझे बोला कि माइनस वाई उधर लेके जाओ, मैंने आपका बात सुना. ठीक है, तो ये dy by dx हो गया. संस्कार, आई होप यू आर ऑल्सो पेइंग अटेंशन. सेम डाउट था. तो dy माइनस वाई डी अपॉन डी इज इक्वल टू 4x प्लस 1. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dy माइनस वाई डी इज इक्वल टू 4x प्लस 1 डी. इज द राइट हैंड साइड सॉर्टेड? ये ओके है? बोलो, इज दिस ओके? यस. बट देन इज लेफ्ट हैंड साइड ओके? नो, क्योंकि वहां पे y का टर्म्स चाहिए, वहां पे तो x भी है. चलो, नाउ टेल मी, कैन आई सेंड दिस dx टर्म ऑन द राइट हैंड साइड? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? ऐसा कुछ डेंजरस मैथमेटिक्स है क्या? नो, बीच में माइनस साइन है ना, तो कैसे कर सकता हूँ? तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस इज कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल स्टार्टिंग में होगा ही नहीं. और अगर होता था तो ऑब्वियसली मैं लास्ट लेक्चर में ही करता था ये प्रॉब्लम. संस्कार, इज इट ओके? ठीक है. हेत, इज इट फाइन? अरे हेत भाई, तेरे को समझाना ही है अभी. एक रबर बैंड रहते ना, रबर बैंड, उसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करने का, तो क्या होता है वो? हाँ, फिर ये मैंने जो पढ़ा है वो समझा है, तो तुम लोग और दूसरा डिमेंशन में क्यों जा रहे हो?
फिर मेरा एक ही सजेशन है, वो बाकी का चीज ऐसा होगा क्या वैसा होगा क्या, बोर्ड एग्जाम के बाद मेरे साथ आके बैठो, हम लोग, मैं तुमको सब कुछ और पूरा मैथमेटिशियन ही बना दूंगा मैं, तुम लोग टेंशन मत लो। कीप इट सिंपल, जो समझा है वो लेने का, निकल जाने का। ओके, सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मेरे हिसाब से दो या तीन ही प्रॉब्लम है, तो यू कैन जस्ट रिमेंबर दोस प्रॉब्लम्स लिटरली, कि हाँ ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम्स है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, गो टू मिसलीनियस एक्सरसाइज। मिसलीनियस एक्सरसाइज आपको पता है, मिसलीनियस एक्सरसाइज सुना है क्या? या उसमें सॉल्व द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग, उसके अंदर सॉल्व द फॉलोइंग के अंदर, सॉल्व द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। dy by dx is equal to x plus y plus 1 upon x plus y minus 1, x plus y plus 1 upon x plus y minus 1, राइट। ओके, अभी मुझे तुम लोग जो करना है करो, जो मारा मारी इसके साथ करना है करो, सेपरेट करके बताओ, x टर्म्स एक साइड पे, y टर्म्स एक साइड पे। हाँ, लेकिन एक साइड पे x टर्म्स रहेगा तो उधर y नहीं दिखना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। जो करना है करो, बताओ, एंड में मत बोलो फिर ऐसा करने का वैसा करने का, अभी करके बताओ। आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, सेपरेट हो भी सकता है, आई एम नॉट टेलिंग कि आई एम ऑलवेज राइट, आई वांट यू पीपल टू ट्राई, सेपरेट हो सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो सब मेरे को मत बोलो, सेपरेट होता है कि नहीं मेरे को बताओ, आई वांट द फाइनल रिजल्ट। कुछ सेपरेट होता नहीं है, अगर सेपरेट ये होता रहेगा, तानिया आप बार बार बोल रहे हो ना ये सेपरेट हो रहा है, मुझे नेक्स्ट ऑफलाइन लेक्चर में आप सेपरेट करके बताओ। ओके, ऑफलाइन लेक्चर में मुझे सेपरेट करके दिखाओ, ठीक है। अदर्स टेल मी, कैन वी सेपरेट दिस? एमिमा, आर यू ट्राइंग? यस, कम ऑन, टेल मी गाइस। नहीं हो रहा है ये सेपरेट, दिस इज नॉट गोइंग टू गेट सेपरेटेड एट ऑल, मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है, मेरा जितना भी लिमिटेड नॉलेज है मैथमेटिक्स में, जितना कम मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से तो ये नहीं हो रहा है। ओके, अभी कोई कोई स्टूडेंट्स लोग हैं उनको बहुत तेज नॉलेज है, उनको लग रहा है सेपरेट होने वाले हैं, राइट, तो वो लोग मेरे को करके बताएंगे, राइट। ओके, if it is not getting separated, if it is not getting separated, okay, what is the next thing that we will think about? दूसरा क्या ऑप्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ when we say method of substitution, when we say method of substitution, तो कुछ तो t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यू विल गिव मी द राइट आंसर्स, व्हाट विल बी इक्वल टू t, t क्या रहेगा, चलो बोलो, एंड आई एम वेरी श्योर कि मेनी स्टूडेंट्स विल गिव मी द राइट आंसर, many students will give me the right answer. Yes, I've got two right answers अभी तक। साक्षी जी, मैं u के जगह पे t ले रहा हूँ, u के जगह पे मैं t ले रहा हूँ, u भी ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। वो डाइजेस्ट वाइजेस्ट में u v कुछ भी देके रखा है, मैं तो t पकड़ के चल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ ना डाइजेस्ट में उन लोग ने v लिया है, वो v भी क्यों चाहिए, मैंने तुम लोग को सिंपल सिखाया ना t, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, सो टेक t। ओके, या कम ऑन टेल मी, व्हाट इज इक्वल टू t?
अभी तक एक को छोड़ के बाकी सब लोग ने राइट आंसर दिए। बोलो। आई वॉन्ट यू पीपल टू ट्राई। मैं आप लोग का एक बार सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा तो फिर सब कुछ इजी लगेगा। यू नीड टू थिंक बेसिकली। यस, कम ऑन, दोज हु हैव नॉट ट्राइड एज ऑफ नाउ, कैन यू टेल मी? टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी बोलो। ओके चलो, सो लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, पुट x प्लस वाई इक्वल टू टी। दैट्स इट। देखो ना, कॉमन है x प्लस वाई, तो टी ले लिया मैंने, राइट? डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ टी। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है? 1। डी बाई डी एक्स ऑफ y कितना होगा? डी वाई बाई डी एक्स। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ओके, तो मुझे बोलो, therefore dy by dx is equal to dt by dx minus 1। dy by dx is equal to dt by dx minus 1। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले कॉपी करो, यू टेक योर टाइम टू जस्ट कॉपी दिस, प्लीज कॉपी। हेत, तू मुझे बोल रहा था कि इसको टी लेने का, नॉट अ बैड अटेम्प्ट। मैं बोल रहा हूँ कि ये कुछ, अगर आपको ऐसा लगता रहेगा ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसका अगर टी आप लोगे, इसका टी, तो इसको डी बाई डी एक्स करेंगे तो वोंट इट बी लाइक वेरी मच हॉरिबल? हाँ, है कि नहीं? ठीक है, तो मैंने देखा कि आप यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो द कॉमन पार्ट इज एक्स प्लस वाई, उसको मैंने टी ले लिया। ओके, चलो आगे बढ़ू मैं। शुड आई प्रोसीड? इफ यू हैव कॉपीड दिस, जल्दी जल्दी, टाइम पास मत करो। नेक्स्ट, फ्रॉम 1 dt by dx minus 1 is equal to, anyone? फ्रॉम 1 dy by dx की जगह पे dt by dx minus 1 लिख दूंगा मैं। dt by dx minus 1 इक्वल टू t plus 1 upon t minus 1, करेक्ट? t plus 1 upon t minus 1, फाइन। see now, from 1 dt by dx minus 1 is equal to t plus 1 t minus 1. So dt by dx, now I need not explain this, t plus 1 t minus 1 plus 1, चलेगा क्या? फाइन, so this will be dt by dx t plus 1, what is 1 into t minus 1, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा? t minus 1, ओके, अपॉन t minus 1, फाइन। प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। चलो कॉपी करो यहाँ तक, इस कॉपी लिया, जल्दी जल्दी कॉपी करो, बाद में वापस ये स्लाइड पे आने को मुश्किल गिरता है मेरे को, अगर मैंने गलती से इरेज किया रहेगा तो। मेक इट क्विक।
आगे बढ़ू। So dt by dx is equal to 2t upon t minus 1. dt by dx is equal to 2t upon t minus 1. ओके, अभी सेपरेट कर सकते हो क्या? t का टर्म्स एक साइड पे, x का टर्म्स एक साइड पे, अभी तो आराम से सेपरेट कर सकते हो। चलो, मैं एक्स्ट्रा स्टेप्स लिख रहा हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, कैन आई कीप दिस 2 ऑन द राइट हैंड साइड? ये 2 को राइट हैंड साइड पे रख सकते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड पे भी जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन वो 2 को क्यों शिफ्ट करना है? व्हाई टू शिफ्ट दैट 2? लेट इट बी ऑन द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा? t माइनस 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 2 dx। बराबर है क्या? t माइनस 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 2 dx। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? देयर इज नो रिस्पॉन्स। ओके, तो देखो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड t माइनस 1 अपॉन टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। okay, let us take this separation t upon t minus 1 upon t। मैथमेटिकली वैलिड है क्या? 2 बाहर, अंदर 1, 2 बाहर, अंदर 1। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन टी। ओके, इक्वल टू 2x प्लस सी, इक्वल टू 2x प्लस सी। राइट हैंड साइड समझा ना तुम लोगों को? हाउ इट इज 2x प्लस सी? कॉपी करो जल्दी जल्दी, आई विल वेट। ओके, मुझे एक बात बोलो अभी, इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x, ये तो बराबर है, बट देन आई एम एक्सपेक्टिंग सम स्पेसिफिक आंसर ओवर हियर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 t रहेगा, t, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी t।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/t log mod t। अरे दीदी, यहाँ पे x है, इसके लिए x आया। क्या सानिया जी आप ऐसे करते हो? ओके, integration of 1 is t, fine, so let me just write t minus log mod t चलेगा ना, is equal to 2x plus t, fine, is this okay? 1/t का तो log mod t है ना। चलो टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस? अभी क्या करूँ? नाउ नाउ अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई डू? नहीं, जीएस अभी नहीं आएगा निखिल, जस्ट थिंक, अभी जीएस नहीं है ये। अभी टी का वैल्यू डाल देने का है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीबॉडी इज राइट। टी का वैल्यू क्या है? एक्स प्लस वाई। टी इज एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई माइनस लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी, इज इक्वल टू 2x प्लस सी, फाइन। ओके, so can I write this as y minus log modulus x plus y is equal to x plus c? ये 2x में से x माइनस कर दूंगा मैं, राइट हैंड साइड में 2x में से x माइनस हो जाएगा। आर यू फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट? दिस बिकम्स योर जनरल सोल्यूशन। अभी यहाँ पे कोई लॉक टर्म है नहीं क्लब करने के लिए। डू वी हैव अ लॉक टर्म टू क्लब ओवर हियर? ये वाला लॉक टर्म के साथ ग्रुप करने के लिए कोई और लॉक टर्म है क्या? नहीं है। तो फिर वो लॉक के साथ ज्यादा मस्ती नहीं करने का, राइट? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम में अभी पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, बिकॉज दे हैव गिवन x इक्वल टू 2/3, y इक्वल टू 1/3, तो पुट x इक्वल टू 2/3, y इक्वल टू 1/3। चलो डाल दो इसमें। y का वैल्यू डाल देता हूँ। y का वैल्यू क्या है? 1/3 माइनस लॉग, लेट मी जस्ट पुट दैट, 1/3 माइनस लॉग मॉडुलस 2/3 प्लस 1/3 इक्वल टू x का वैल्यू कितना है? 2/3 प्लस c। ओके, सो 1/3 माइनस 2/3, 1/3 माइनस 2/3, 2/3 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया, या फिर 1/3 को राइट हैंड साइड में भी लेके जा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, किधर भी लेके जाओ। माइनस लॉग मॉडुलस, कोई बताएगा इसका आंसर क्या है? मॉडुलस के अंदर क्या लिखा? 1। ओके, एंड व्हाट इज लॉग 1? मैंने काफी टाइम आपको बताया, अभी ऑफलाइन लेक्चर्स में भी मैंने एक बार बताया रहेगा आपको लॉग 1 का वैल्यू कितना है।
log 1 is 0, correct. So what is the answer of this? Minus 1 by 3 minus 0 is equal to C. C is equal to minus 1 by 3. C equal to minus 1 by 3. चलेगा क्या? ठीक है, बोलो आगे क्या करूं? As per your knowledge, you tell me. What should I do? C को जनरल सोल्यूशन में डाल दो. C को जनरल सोल्यूशन में डाल दो. Okay. Put C equal to 1 by 3 in general solution. So y minus log x plus y is equal to x plus x minus 1 by 3. X minus 1 by 3. Zoom session. हाँ, ठीक है. ओके, नाउ ये 3 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के, तो कर सकते हो. ओके, तो चलो वो थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग. ऑप्शनल है वो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इतना कुछ बड़ा नहीं है. पहले एलसीएम लिया, फिर ये 3 को, फिर ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 3y माइनस 3 into log x plus y is equal to 3x minus 1. This is the particular solution. This is equal to particular solution. ठीक है. Hey, you understood these steps? यहाँ से लेके यहाँ तक. Are you understanding this? अगर आप लोग यहाँ पे भी एंड करते हो, इट्स ओके, स्टिल इट्स ओके, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इतना कुछ बड़ा नहीं है. दैट्स फाइन. मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, कुछ मेजर प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई की है. ठीक है, प्रीवियस स्लाइड देखो, जिसको देखने का था जल्दी देखो, जल्दी प्लीज. यस, ओके. ये देखो, ये फाइनल फाइनल स्लाइड. नाउ आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा और कोई ऐसा प्रॉब्लम है. यस, देयर इज वन प्रॉब्लम, आई थिंक दैट इज आल्सो ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो वो एक प्रॉब्लम करके हम लोग ये लेक्चर वाइंड अप कर देंगे. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल गेट ओवर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, सेम एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन 7. आई एम इरेजिंग ऑल दिस स्लाइड्स. ओके, 3 प्रॉब्लम ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है, बराबर से करके जाना. देयर आर ओनली 3 प्रॉब्लम्स ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, दिस इज द सब क्वेश्चन 4.
Question number 4, sub question 7 from the miscellaneous exercise. X plus y dy is equal to a square dx is equal to a square dx. So dy by dx, ये देखो सबसे पहला ये सेपरेट कर सकते हैं क्या? कैन वी सेपरेट x and y टर्म्स? यू फर्स्ट टेल मी दैट. कैन वी सेपरेट x and y टर्म्स? ओके, एज यूजुअल एक स्टूडेंट को छोड़ के बाकी सब लोग नो बोल रहे. करके दिखाओ. ओके, जो जिसने मेरे को नो बोला है प्लीज. यस सानिया मैडम, भेज दो, आ जाओ ऑफलाइन लेक्चर में सेपरेट करके मुझे बता दो. नेक्स्ट ईयर से मैं सेपरेशन के साथ सिखा दूंगा. एंड आई विल गिव ऑल क्रेडिट्स टू यू. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. यस, बोलो बाकी जिसको लगता है सेपरेट कर सकते हैं. प्लीज लेट मी नो. आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, तो प्लीज बोल दो. ट्राई 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 तो करो एटलीस्ट. मैंने बोला नहीं इसका मतलब थोड़ी है ऐसा. इधर तो कितना ऐसा एक आध दूसरा स्टूडेंट है पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं नहीं होगा वो सेपरेट विदाउट ट्राई किए बिना. यस, तो तुम लोग भी ट्राई करो. दोज हु आर सेइंग नो. ओके, या तो ये सेपरेट होगा नहीं. तो सिंपल सा चीज है देखो. dy by dx is equal to a square upon x plus y. नाउ व्हाट इज ए क्या है? चलो बोलो. अभी लास्ट वीक में तुम लोग को मैंने इतना ऑफलाइन लेक्चर्स लिया है डिफरेंशिएशन का. सो व्हाट इज a is a constant. Very good. God bless you all. a is a constant. आगे बोलो. चलो अभी तुम लोग का आइडिया के हिसाब से व्हाट आर वी सपोज टू डू? क्या कर सकते हैं हम लोग? x प्लस वाई को t ले लेते हैं. इक्वेशन नंबर 1, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू t. d by dx of x plus y, d by dx of t. ओके, ये 1 है और ये dy by dx. सो 1 plus dy by dx is equal to dt by dx. 1 plus dy by dx is equal to dt by dx. बोलो what should be the next step? Now you people tell me what should be the next step. इसके बाद में क्या करूं? 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूं. dy by dx is equal to dt by dx minus 1. ओके, dy by dx is equal to dt by dx minus 1. dt by dx minus 1. ठीक है, just copy this. I'll wait. Please copy this. अगर आपने ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई को टी लिया तो इसका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब भी यहाँ पे आप टी लिखोगे, इसको इसको टी लिखोगे, डोंट यू फील इसका डेरिवेटिव बहुत ही हॉरिबल है? यस, शुड आई प्रोसीड? फ्रॉम
from 1, dt by dx minus 1 is equal to a square upon t. चलेगा? Is it okay? Is this fine? So dt by dx is equal to a square by t plus 1. चलेगा? a square by t plus 1. Okay. So dt by dx a square plus t upon t. A square plus t upon t. Now can we separate x and y terms? Now can we separate x and y terms? Yes. Now we will have to separate x and y terms. अभी यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है. दिस प्रॉब्लम इज नॉट एज सिंपल एज द प्रीवियस टू. इसके लिए बराबर से ध्यान दो. आगे बढ़ू. ओके. तो t अपॉन a स्क्वायर प्लस t dt इज इक्वल टू dx. देखो वापस एक बार दिखाता हूँ मैं. प्रीवियस स्लाइड. आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड. मैंने dx को राइट हैंड साइड में लिया और ये दोनों टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ये हो गया कि ये कॉपी करके आई एम जस्ट वेटिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. क्रॉस मल्टीप्लाई किया. देखो अभी क्या करूँ? यू पीपल टेल मी व्हाट शुड आई डू नाउ? इंटीग्रेट. इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t प्लस a स्क्वायर dt इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. ओके. राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को देखो मैंने कैसा लिखा है. ये दोनों को रिवर्स कर दिया. t अपॉन t प्लस a स्क्वायर. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है. अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज फाइन. राइट हैंड साइड विल बी x प्लस c. आई नीड नॉट एक्सप्लेन दिस. राइट हैंड साइड x प्लस c की है. देखो कॉपी करो. ओके. नाउ सी. ऊपर कांस्टेंट नहीं है. ऊपर t का टर्म है. एंड डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज सेम एज डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. Degree of the numerator is same as degree of the denominator. So what do we do in this case? हम लोग क्या करते हैं?
किसी को इंटीग्रेशन याद है तो, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन का थोड़ा रिवीजन भी नहीं किया है। अगर दोनों का डिग्री सेम रहेगा तो क्या करते हैं? करेक्ट। मुझे 2-3 आंसर आया, सब लोगों ने राइट किया। ए हेत, क्या रे तू कुछ भी बोल रहे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसा आएगा? अरे कुछ भी, हवे में तीर मार रहा है। ओके, सो मेक न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर। तो टी प्लस ए स्क्वायर, मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बना दिया। अभी क्या करूं? न्यूमरेटर में कुछ तो पेंडिंग है, न्यूमरेटर में कुछ तो पेंडिंग है। यस, माइनस ए स्क्वायर। ये न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर है, मीमा सी दिस न्यूमरेटर आई मेड इट सेम एज द डिनोमिनेटर। ये दोनों सेम किया मैंने। हाँ, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, आगे एडजस्टमेंट तो जरूरी है ना। ये जबरदस्ती हम लोग ने प्लस ए स्क्वायर किया, सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सब्ट्रैक्ट दैट ए स्क्वायर एज वेल। ठीक है, अभी क्या करूं? वंस आई मेड द न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर, व्हाट शुड आई डू? क्या करूं मैं? तुम लोग बोलो। स्प्लिट। कभी भी हम लोग ऐसा करते हैं, मेक न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर, वी ऑलवेज स्प्लिट पूरा इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लिखूंगा डी टी, राइट हैंड साइड पे एक्स प्लस सी, और राइट हैंड साइड पे एक्स प्लस सी। चलो समझा ये स्टेप तुम लोग को? दिस वाज द वेरी क्रूशियल स्टेप, ये जो मेक न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर ना, दिस वाज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। बाकी प्रॉब्लम इतना कुछ अभी डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ो। 1 माइनस ए स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर डी टी एक्स प्लस सी। ओके, नाउ इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर डी टी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या है? एक्स लिखू कि टी लिखू? आई राइट टी, राइट? ओके, और यहाँ पे ए स्क्वायर को पहले बाहर निकाल देता हूँ, आई जस्ट शिफ्ट इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन। ओके, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये नीचे वाला ए स्क्वायर बाहर नहीं जाएगा, ये वाला ए स्क्वायर बाहर नहीं जाएगा, के बाजू में प्लस साइन। तो टी माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर डी टी।
इज इक्वल टू एक्स प्लस, कंपेयर दिस विथ 1/t। टी के जगह पे क्या है, टी प्लस ए स्क्वायर, टी के जगह पे टी प्लस ए स्क्वायर, इस टी प्लस ए स्क्वायर लीनियर अलजेब्रिक टर्म, इस टी प्लस ए स्क्वायर लीनियर अलजेब्रिक टर्म। यस, ए स्क्वायर को कुछ देखो भी मत, हो तो कांस्टेंट है, टी का पावर क्या है 1। ओके, सो टी माइनस ए स्क्वायर log मॉड्यूलस टी प्लस ए स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका आंसर क्या है, डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस ए स्क्वायर 1, डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस ए स्क्वायर इज 1। हाँ, और टी के जगह पे क्या आएगा, टी के जगह पे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। चलो नीचे 1 डाल दो और ऊपर टी के जगह पे एक्स प्लस वाई डाल दो। आई विल वेट फॉर यू। जो लोग ये कॉपी कर रहे हैं वो लोग कॉपी करो, बाकी लोग मेरे लिए रुको। Those who want to proceed can proceed. टी के जगह पे एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस वाई प्लस ए स्क्वायर। ओके, नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है, एक्स प्लस सी, ये एक्स और ये एक्स दोनों साइड से कैंसिल, वाई माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी, जनरल सोल्यूशन। और इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, इज दिस ओके? ये देखो, टी के जगह पे मैंने एक्स प्लस वाई डाल दिया, टी के जगह पे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, राइट हैंड साइड तो सेम ही रहेगा ना, एक्स एक्स कैंसिल हो गया दोनों साइड से। ये बोलो रे बाबा, समझा कि नहीं? ओके, हाँ हाँ सॉरी, ये सी यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, करेक्ट। या सॉरी, वो लिखते लिखते मैंने एडिशनल एक एक्स लिख दिया। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ कि डाइजेस्ट ने आगे भी सॉल्व किया है, बट देन नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। यहाँ पे खत्म कर दो प्रॉब्लम। फाइन। सो आई थिंक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आई हैव कंप्लीटेड। देयर आर 3 प्रॉब्लम्स, मैंने आपको तीनों प्रॉब्लम बराबर से सिखा दी है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? अरे ये प्रॉब्लम में पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा क्या? जाते जाते थोड़ा टाइम पास करते, बोलो पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा क्या? ओके, मुलुंड ब्रांच स्टूडेंट्स प्लीज हेल्प सानिया, नेक्स्ट टाइम वो आएगी ना वो ब्रांच में, उसको बता देना कि पर्टिकुलर सोल्यूशन क्यों नहीं आएगा।
ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, मेरे लिए इतना काम कर दो। फाइन। Okay, so the lecture is over and I will see you in the offline lectures this week. Fine. Chalo, bye, good night, take care.